Hi, my name is Mahesh and I'm from Selective Trade. Now, as promised, I'll be discussing some basic about the options. What are CEs, what are PE, what is call, what is put. All these details we'll be discussing, and we'll also be discussing the difference between the call buying and put selling, or maybe put buying and call selling. What is the difference between that, and how that can be made useful in our day-to-day trade. We will also be discussing about the open interest and volume, the difference between them, and how both things can be put to use, so that your trade can be more informed. So just to start, now what is an option? Option is nothing but it's a contract. It's a contract between the two parties where the period is fixed. The strike price on which the contract is going to happen is fixed, and the premium is also fixed. So when a person A is entered into a contract with person B, specifying that this is the specific period and this is the specific underlying or the nifty that we are talking about, and this is the premium that I will be paying to you if I buy it, then this contract is called an option contract. Now, underlying can be different things. In our case, it can be a stock, it can be a index, it can be commodity, it can be an oil and other things as well. But let's limit ourselves to stock and index. So, couple of things. In an option, there is an underlying. The period is fixed. For that particular period, the premium is decided, which varies on day to day or even from time to time. And then there is a strike price for which the contract is being executed is fixed. So when I say that there is a nifty contract of 23,000 and the premium for this is, say for example, 50. So what I am doing is and this is for maybe September series. So the period is fixed up to the last Thursday of September or the last expiry day of that particular month. The strike price, that is 23,000, is fixed. The premium when I enter into a contract is rupees 50, that is fixed. So these things are fixed. If I buy a contract, I need to pay the premium to the seller. If I sell the contract, I get a premium from the seller. This is the actual difference between buyer and seller of a contract. Now, what is call and what is put? There's a lot of confusion generally happens for these things, especially in beginner's mind. Now, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स में समझिए. एक दुकानदार है जो अपनी चीज़ें बेचना चाहता है. जो चीज़ें वो बेचना चाहता है वो बिखर के रखता है सामने. आपने रास्ते पे दुकान देखा होगा कभी, जो डिस्प्ले करके रखता है. So he put those things for selling. So put is nothing but selling. और जो भी बंदा वहां से जा रहा है वो उस सब चीजें जो बिखरी हुई है उस चीज में से किसी एक चीज को कॉल करता है, एक चीज को बताता है कि ये चीज मुझे लेनी है. दैट्स कॉल. सिंपल. सो when we say call, it's buying. When we say put, it's selling. Concept is clear. Shouldn't be any confusion for that. Now, when we understood that what is call, what is put, we need to understand what is CE and what is PE. Here, E stands for European, C stands for call option, P stands for put option. These are options. So, CE is call European option, PE is put European option. Now, there are two types of option. One is American option and one is European option. Don't go by the nomenclature. European option is accepted in America and other rest of the world. European option is accepted in America and rest of the world. So don't go by just nomenclature. In Indian parlance, we generally accept or trade European options. The difference between European and American options is the period. If there is an expiry, in case of European contract, the contract can be settled only at the time of expiry. But in case of American contract, it can be settled before the day of expiry. So when we say, and in our Indian parlance, it's generally European options. That's why the reason CE and PE are the common nomenclature which are being used in India. Here, when we enter into a nifty contract of 23,000 I discussed earlier with a September expiry, so the contract can be squared off or contract will be liquidated only on the last
expiry day of September month, right? So now there is a natural question which will come into your mind कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सितंबर के एंड में ही अगर उसको लिक्विडेट होना है तो बीच में ट्रेड कैसे होगा? मतलब अगर सितंबर में मैंने ले लिया तो सितंबर एंड तक मुझे लेके बैठना होगा? नो, ट्रेडिंग कैन हैपन. देयर आर n number of buyers and sellers available in the contract. मैंने अगर 23,000 का कॉल लिया हुआ है, 3 दिन बाद मेरे को लगता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे बेच देना चाहिए, I'll put that contract for sale and there are other buyers available वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे. ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक हाथ से दूसरे हाथ मूव होते रहेगा. इट विल मूव फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, बट actual liquidation of that contract will happen on the last day of that expiry month. Clear? So this is about option. This is about what is call put, what is CE, what is PE. Now we have understood what is CE and what is PE. We need to understand what is open interest, which is a generally used term. You must have heard it many times, and it's very useful as well. Now इसको थोड़ा जरा डिटेल में समझते हैं. Open interest is nothing but the total number of contracts which are open in the market at this moment of time. A ने एक कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है और B ने परचेस किया है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही आउटस्टैंडिंग है. सो OI इन दिस केस इज 1. एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा गया, एक कॉन्ट्रैक्ट परचेस हुआ, सो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, सो OI इज 1. बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट जब अब लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेचा और एक डी ने खरीदा, सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर आउटस्टैंडिंग आर 2 नाउ. सो ओपन इंटरेस्ट इज 2. से ऑन अ थर्ड डे मे बी सी डी के पास जो कॉन्ट्रैक्ट था, डी ने जो परचेस किया था, वो उसने सी के साथ लिक्विडेट कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो गया. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग इज जस्ट 1, सो ओपन इंटरेस्ट इज 1. अंडरस्टूड? आई एम एक्सप्लेनिंग इन सिंपल लैंग्वेज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओपन इंटरेस्ट विथ रिलेशन टू वॉल्यूम. हमने एग्जांपल देखा था कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, बी ने सेल किया है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है, ओपन इंटरेस्ट इज 1. इन दैट केस वॉल्यूम इज ऑल्सो 1. एवरी सेल एंड परचेस पेयर is 1 volume. अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम इज नथिंग बट द एक्चुअल ट्रेड्स विच आर हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे. अगर से ऐसे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है, सो ओपन ऑफ इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट विल बी 50,000. बट ऑन अ पर्टिकुलर डे, से ऑन अ मंडे ऑफ दैट मंथ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिक्विडेट हुए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नए एस्टेब्लिश हुए, और टोटल ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डे अगर से 10,000 हो जाता है, तो वॉल्यूम इज 10,000, बट OI विल बी 50,000. Of course, this 10,000 will take effect on 50,000 if there are certain new contracts added, there are certain existing contracts liquidated, open interest will change. बट मोटा मोटी ये डिफरेंस है, ज़्यादा टेक्निकल में जाने की आवश्यकता नहीं है. उसका सिर्फ प्रैक्टिकल यूज कैसे करना ये मैं बताऊंगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. सो जस्ट इतना ध्यान में रखिए, ओपन इंटरेस्ट नथिंग बट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर ओपन टिल दैट पीरियड इन द मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर अंडरलाइन, एंड वॉल्यूम इज नथिंग बट द टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन दैट पर्टिकुलर डे. दैट्स वॉल्यूम. अब ये हो गई ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की बात. इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है विच इज कॉल्ड एज मनीनेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स. हमने कई टर्म्स ऐसे सुने होंगे, इन द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है. बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरा भी होता था. फिर एक सिंपल रूल इसमें ध्यान में रखिए कि जो बायर है, से अभी मार्केट अगर 23,000 निफ्टी पे है तो 23,000 वाला एट द मनी कहलाएगा. क्लियर है? अगर से मार्केट 23,000 से 51 है तो 23,050 एट द मनी कहलाएगा. ठीक है? नियरेस्ट उसका जो स्ट्राइक प्राइस है दैट इज एट द मनी. ठीक है? नाउ व्हाट इज इन द मनी एंड व्हाट इज आउट ऑफ द मनी?
जनरली लोग यूज करते हैं, इन द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बायर के हिसाब से ध्यान रखिए, बायर के हिसाब से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो प्रॉफिट में है, विच इज इन द मनी। अंडरस्टूड? नो, ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय एन एग्जांपल। मैं एक निफ्टी का बायर हूं। निफ्टी का 23,000 का मैंने स्ट्राइक प्राइस का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है। मैं प्रॉफिट में कब रहूंगा? जब निफ्टी 23,000 से ऊपर रहेगा, राइट? मैं बाय किया हूं मतलब 23,000 से मार्केट ऊपर जाएगा, ये समझ के बाय किया हूं, राइट? सो जब एज अ बायर मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ऑल दो स्ट्राइक आर इन द मनी, नहीं? ओके, सो 23,000 का मैंने बाय किया हुआ है। 23,000 के ऊपर के सब जो स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे विच विल बी इन द मनी, और 23,000 के नीचे के जो रहेंगे विच इज आउट ऑफ द मनी। सेम थिंग अप्लाई होगी इफ आई बाय अ पुट कॉन्ट्रैक्ट। इफ आई बाय अ पुट कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कहना है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो 23,000 का अगर मैंने पी लिया हुआ है तो 20,000 के नीचे के सब स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी होंगे, 23,000 के ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस रहेंगे आउट ऑफ द मनी होंगे। बायर के हिसाब से ध्यान रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। 3-4 बार आप ये करोगे, समझोगे, देखोगे ऑप्शन चार्ट, तो ये ध्यान में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन इंटरेस्ट। Now, what is buying of a contract? What is buying of an option? What is selling an option? कैसे होता है कि जब हम स्टॉक से थोड़ा ये डिफरेंस है। जब हम बोलते हैं कि मेरे पास कोई स्टॉक है तो मैं उस स्टॉक को सेल कर पाता हूं। अगर मेरे पास कोई स्टॉक की पोजीशन नहीं है, स्टॉक नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में, आई कैन नॉट सेल दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो बेचूंगा कैसे? बट दैट्स द डिफरेंस। ऑप्शन के केस में अगर आपके पास अंडरलाइन नहीं भी है, स्टिल यू कैन सेल दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो मेरे पास अगर निफ्टी का 23,000 नहीं है, स्टिल आई कैन सेल निफ्टीज 23,000 स्ट्राइक प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट्स। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ऑप्शन ट्रेडिंग। नाउ ये हो गया सेलिंग और बाइंग का। नाउ स्क्वेयरिंग ऑफ क्या होता है? स्क्वेयरिंग ऑफ इज नथिंग बट मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिक्विडेट कर दिया। मे नॉट बी at the time of maturity, it can be before the maturity or it can be on the time of maturity. जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए खत्म हो जाएगा, which is called a squaring off. Now let me explain. If 23,000 का मैंने एक कॉल बाय किया हुआ है और 4-5 दिन बाद निफ्टी अच्छा खासा बढ़ जाता है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दूंगा किसी दूसरे को। मार्केट में सेलर जो है वो परचेस करेगा, उसके लिए वो नया कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए जो परचेस किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने सेल कर दिया, मेरी पोजीशन क्लियर हो गई, which is nothing but squaring of my position. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और वैसे ही बैठे रहे, मार्केट आगे जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, से सितंबर का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो सितंबर मंथ के एक्सपायरी में वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके अकाउंट को रिफ्लेक्ट होगा। सो स्क्वेयरिंग ऑफ कैन हैपन बाय योर ओन एक्शन और इट कैन हैपन बाय एक्सपायरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ना एक लास्ट थिंग थोड़ी स्पेसिफिकली मैं बताता हूं कि मैंने ये पी बेचा, वो स्टॉक का पी बेचा, उस स्टॉक का पी बेचा। बाइंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू सेलिंग, बाइंग ऑफ अ सीई कॉल ऑप्शन इज नथिंग बट सेलिंग ऑफ पुट ऑप्शन। मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट सीई बाय कर रहा हूं इज एज गुड एज सेलिंग पी। मार्जिन के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, बट मोटा मोटी ये ध्यान में रखिए, बाइंग ऑफ अ सी इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ अ पी। बाइंग ऑफ अ पी इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ अ सी। व्हेन आई से सो, व्हेन आई बाय सी, I presume that market will go up. When I buy CE of say State Bank, I presume that State Bank prices will go up in future days. Same thing happen, and if the prices move up, I'll be benefited, I'll be in profit. Same thing happens if I sell a PE and prices go up, the premium will come down and I'll be in profit. So
when I buy a C, my profitability will go up when the prices go up. When I sell a P, my profitability will go up when the stock price will go up. And exactly opposite is CE selling and PE buying. When I buy a P, I presume that the stock price will go down, and if it go down, then I'll be benefited. Same is the case when I sell a C, I presume that the stock prices will go down, and if it goes down, I'll be benefited. तो फिर लोग पी सेलर्स क्यों बनते हैं? सब पी बाय या सी बाय क्यों नहीं करते? This is altogether different topic that we'll be discussing. The only couple of things I must mention here that बाय करने के लिए आपको प्रीमियम देना पड़ता है. सो इंस्टेंटली उतना प्रीमियम आपका चला गया. अब उसमें लॉस जो होगा, जो प्रीमियम दिया हुआ है, मैक्सिमम लॉस जो होगा, जो प्रीमियम दिया हुआ है उतना ही हो सकता है, उससे ऊपर तो नहीं हो सकता. दैट्स वन थिंग. इसलिए उसमें आपको जो मार्जिन रहेगी, वो जो प्रीमियम आपने दिया हुआ है उतनी ही लगती है, क्योंकि वो टोटल अगर आपके एडवर्स ट्रेड चला गया, देन द टोटल लॉस इज इक्वल टू द टोटल प्रीमियम विच इज पेड. बट इन केस ऑफ सेलर, आपका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम दैट यू गेन्ड. एज अ सेलर यू विल गेट द प्रीमियम, राइट? सो जो प्रीमियम आपको मिला है, दैट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू कैन अर्न. बट योर लॉस इज अनलिमिटेड. कितना भी बड़ा लॉस हो सकता है. इफ द मार्केट इज गोइंग इन एडवर्स डायरेक्शन एंड द स्टॉक प्राइस इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन यू प्रिज्यूम्ड, your loss is unlimited. And that is the case here. The margin which is required is higher in case of seller. And as you approach the expiry period, the margin keeps on increasing. In case of buyer, margin is fixed, is not going to change till the expiry of the period or till the squaring off of the contract. Understood? So this is just a glimpse of the option. These are the basics of the option. Hope you like the video. If you like the video and its content, as usual, hit the like button. And you're hitting the like button will give me boost to make more such videos. Until next video, Jai Hind, Ganpati Bappa Moria.